Shall we start? Let us begin. Yes, sir. ठीक है? Okay, now start. It's very simple part, theoretical part. So बहुत easy बच्चों. ध्यान दो. अच्छी तरह ध्यान दो. Now see each and every steps involved in this over here. ठीक है? ज़्यादा गड़बड़ मत करो, ध्यान दो. Here. Now start from the first point over here. First point in a solution. In a solution containing one non-volatile solution. ठीक है? What I say? In a solution containing non-volatile solute. I say one non-volatile solute. The law is applicable. Which law? Raoult's law. The Raoult law means the law is applicable. Raoult law. Yes, only for volatile solvent. volatile solvent के लिए फॉलो होता है भाई. ठीक है? तो we can state its statement with the help of this solution containing one non-volatile solute and other is a volatile solvent. So combination of these two. Let us see how we will explain it. Its statement here. Now see, it said that vapor pressure of solvent, how is that here? Vapor pressure of solvent over the solution is equal to vapor pressure of pure solvent multiplied by its mole fraction in the solution. कळलं का? I repeat, what is that here? क्या बोला पे? बोल देखो ये सॉल्यूशन है. तो सॉल्यूशन में क्या है? एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है जो कि अमाउंट उसका ज्यादा रहता है पॉइजन, और दूसरा कंपोनेंट है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. तो उस तरह के सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे राउल्ट्स लॉ को अप्लाई कर रहे हैं. एप्लीकेबल है, अलाउड है. ठीक है? क्या बोलता है फिर राउल्ट्स लॉ इस सॉल्यूशन के लिए? राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट इस तरह से है. देखो इधर बॉयज, इट स्टेट दैट vapor pressure of a solvent is equal to, the vapor pressure of solvent over the solution is equal to vapor pressure of pure solvent multiplied by its mole fraction in the solution. ठीक है? now see statement boys, क्या बोला? it state that the vapor pressure, एक मिनट झगड़ा कौन कर रहा है? भाई इधर ध्यान दो. state that the vapor pressure, boys, vapor pressure of a solvent over the solution is equal to what? Is equal to the vapor pressure of pure solvent का vapor pressure multiplied by its mole fraction. उसी solute का mole fraction multiplied by its mole fraction in the solution. Why is that? बहुत इंटरेस्टिंग है. डायरेक्टली मत लो. ठीक है? नहीं तो एक ही स्टेप ले देखो, इधर ले लो. What? I say P1 is okay. Why is that? P1 is equal. Yes. I say P1 is equal to P10 into x1, equation number 1. Boys, what is x1? x1 stand for mole fraction of pure solvent. Got it? We will explain each and every term involved in this equation. ठीक है? Now, boys, point number third. What third? For a binary solution containing non-volatile
सोल्यूट इज गिवन बाय क्या रे x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 चलेगा चालेल का What is it? बराबर है क्या है देखो इधर मतलब क्या है? x1 plus x2 is equal to 1 आपको पता है we have already learned in case of our earlier topic here you will remember that concept here चलो sum P1 बोलता don't hear sum of the algebraic sum of mole fraction of solvent and solute is always unity उनका दोनों का जो फ्रैक्शन रहेगा सॉल्यूशन में देखो सोल्यूट का और सॉल्वेंट का दोनों का एडिशन लिया तो उसका हमेशा एडिशन कितना आता है 1 आता है ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमारे यहाँ पे अवेलेबल है यहाँ पे ऐसा सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन में क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट भी है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी है लेकिन ताज्जुब की बात यहाँ पे ये है यहाँ पे जो सोल्यूट है वो सोल्यूट क्या है नॉन वोलेटाइल उसका इवेपोरेशन होता है नहीं या बहुत लेट होता है उसका वेपर प्रेशर बहुत कम है so there is no contribution on that particular I say such a solute over here so we are taking only the solvent one volatile substance के हिसाब से तो we can take only x1 is equal to 1 minus x2 now substitute this value in equation number 1 क्या मिलेगा substituting x2 in equation 1 boys क्या मिलेगा P1 minus X. p1 is equal to p1 of 0 minus 1 minus x2 by multiply करो इसके ऊपर क्या मिलेगा p1 0 minus P1 0 X2. minus p1 0 x ठीक है ओके ध्यान देना तो अलग से रखो अभी मैं क्या कर रहा हूं उसको उठा के ये minus p1 0 x2 को इधर लेके आता हूं इज इक्वल टू साइन के इधर क्या मिलेगा हमको यहाँ पे सो p1 0 x2 इज इक्वल टू p1 0 minus 0 इसको उठा के इस p1 को मैं उधर फेंकता हूं क्या होता है व्हाट इट बिकम माइनस p1 एंड डू यू रिमेंबर व्हाट इज दिस p1 0 माइनस p क्या रहता है कौन बोलेगा रे क्या रहता है रे क्या देखे रे बाबा delta P. हां वेरी नाइस Delta P. हां अभी इसका एक काम करो ये p1 0 को उधर फेंक दो क्या मिलेगा x2 is equal to Is equal to delta p upon P1 0. very nice p1 do you remember कुछ याद है क्या बाबा क्या रहता है वो क्या रहता है delta p upon p1 0 is equal to Lowering on. yes pick up relative lowering of paper pressures बराबर है क्या गाइस ध्यान दीजिए बाबा लाइटली मत होइए इधर हम so delta p upon p1 0 stand for is nothing but I say relative lowering of paper pressure so we can say relative lowering of paper pressure is equal to x2 बराबर है क्या कळलं पर्यंत so this shows that okay बोलता so this shows that what is that delta p यानी कि vapor pressure lowering depends on x2 and x2 means what number of moles of solute why that is delta p is nothing but vapor pressure lowering is a colligative property और हमको पता है colligative property depends upon the number of solute particles ठीक है तो यहाँ पे रोल्स का फॉलो होता है ठीक है वॉइस फिर से बोलता हूँ Substituting. फिर से बोलता हूँ हाँ क्या substituting x2 वॉइस substituting x2 in this X1. I'm sorry sorry excuse me sorry boss substituting x1 in equation number 1 हमारा we have equation p1 is equal to p1 0 into x1 ठीक है उसमें मैंने क्या किया इसके जगह पे इसको उठा के वहां पे रख दिया मुझे इक्वेशन मिला फिर मैंने बाय p1 0 को मल्टीप्लाई किया मुझे इक्वेशन मिला फिर इसको सिंपलीफाई किया तो इस तरह से मुझे इक्वेशन मिला अंडरस्टूड so therefore this way equation we can say that here what we say here so this shows that we can mention over here this shows that what I say vapor pressure lowering depends upon बराबर है क्या vapor pressure I say lowering depends on what depends on number of solute particles yes particle that is what
पार्टिकल दैट इज x2। और x2 क्या है पता है ना? x2 क्या पता है ना? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। Mole fraction of solute. Yes. So we can say boys, now that is delta P, मतलब क्या है ये? Delta P stand for vapor pressure lowering. Vapor pressure lowering is a Collier property. Finished. Is a colligative property. यहाँ तक कोई डाउट है? भाई लोग बोलो, कोई डाउट है? सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल टेक्निकल पार्ट से try to understand each and every steps what it indicate, what it represents with the help of this canonical parts। ठीक है, बोलो फिर से बोलो क्या? C10 is equals to क्या बोलते हैं वो इसमें कंफ्यूज। हाँ बोलता सब बोलता, डोंट मेक इश्यूज। ठीक है, देखो फिर से बोल रहे हैं, देखो हम यहाँ पे राउंड लॉ को पहले देख चुके हैं। वी हैव सीन केस ऑफ सॉल्यूशन टॉपिक। व्हाट यू रिमेंबर? Raoult's law apply for a solution containing two volatile component. Do you remember? Water molecule and ethanol. वो liquid type of solution के लिए हमने अप्लाई किया था उसको। लेकिन यहाँ पे हम ले रहे हैं non volatile solute, just like salt, sugar, which is the minor amount here in a solvent, water molecule. So sugar plus water solution where we are going to apply the Raoult's law here। तो यहाँ पे किसका, देखो इधर यहाँ पे वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का मिलेगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का मिलेगा, लेकिन वेपर प्रेशर वो जो सोल्यूट रहेगा उसका कुछ भी नहीं मिलेगा, कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम रहेगा। ठीक है, एंटर सॉल्यूशन कंपैरिजन में बिना में क्या बोला इधर, मतलब कितना कौन से कंपाउंड का कितना कंट्रीब्यूशन है सॉल्यूशन में, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? सॉल्वेंट का है, क्योंकि वोलेटाइल है, उसकी वजह से हमें ये प्रॉपर्टी दिखाई जा रहा है। ठीक है, वही ध्यान रखिए। क्या बोला मैंने फिर से, क्या बोला पे? in a solution of a containing one non volatile solute the law is applicable only for the volatile solvent only। तो फिर कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, वो राउल्ट्स लॉ फिर कैसा बनता है, कैसा मॉडिफाई होता है, किसके लिए? इस सॉल्यूशन के लिए हमको इस तरह से बताया है स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इट स्टेट दैट वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर वॉइस लिक्विड सरफेस के ऊपर जो वेपर प्रेशर हमको मिलेगा वो सॉल्वेंट का, देखो इधर क्या मिलेगा, इज इक्वल टू क्या रहता है, इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्वेंट यानी कि P10 वॉइस P10 और उसी वेपर प्रेशर उसी प्योर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, क्या x1, so x1 stand for a mole fraction of a pure solvent over here, so we can take mathematical expressions over here, yeah, so we can take mathematical form what P1 is equal to, I repeat, P1 stand for vapor pressure of क्या Mole fraction। अयो P1 देखो बाबा, P1 क्या है? P1 stand for vapor pressure of solvent over the solution। देखो गड़ का भी काय म्हणतो ते वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू सॉल्यूशन में रहने वाला क्या? वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, उसी का मोल फ्रैक्शन और दोनों का प्रोडक्ट बने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन। ऐसा मैं नहीं बोला, ऐसा कौन बोले? राउल्ट्स अंकल बोल रहे। ठीक है, फिर हम बाद में यहाँ पे दिस उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं पे फॉर व्हाट विद हेल्प ऑफ फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन। इन बाइनरी हैविंग टू कंपोनेंट फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन व्हाई इज दैट containing what containing non volatile solute, containing non volatile solute is given by what x1 is equal to bracket में 1 minus x2, substituting the x1 का जो वैल्यू है पे substituting x1 the value of x1 in equation number 1, so what do you get here? P1 is equal to as it is इतना जान दो भाई, P1 is equal to P10 ब्रैकेट में x1 की जगह में मैंने क्या लिखा पे 1 minus x2, फिर P10 से मैंने मल्टीप्लाई किया हर एक टर्म को ब्रैकेट में रहने वाला, तो मुझे एक्सप्रेशन मिला मेरे को। देखो ध्यान दो, अच्छी तरह गड़बड़ मत करो, तो भाई मगज मत करो बाबा। हां ठीक है, बाद में मैंने उसको सिंपलीफाई किया, फिर बाद में क्या किया माइनस P10 x2 को मैंने उठा के माइनस साइन के साथ उठा के इज इक्वल टू इधर लेके आया तो प्लस हो गया।
ठीक है। और ये जो P1 था यहाँ पे P1 था, P1 को उठा के जो प्लस था उधर हो गया, चला गया वो, इस रिलेशन के क्या होगा माइनस हो जाएगा। और हमको पता है क्या पता है, हमको पे P1 0 माइनस P1 क्या रहता है, डेल्टा P रहता है, उसको हम लोअरिंग वेपर प्रेशर लोअरिंग बोलते हैं, बराबर है क्या बॉयज? ठीक है। फिर हमने क्या किया, ऐसा गम्मत किया था, क्या क्या हमने पे ये P10 x2 दोनों मल्टीपल फॉर्म में यहाँ पे, तो मैंने P10 को उठाया, आराम से उठाया और उधर फेंक दिया, इधर मल्टीपल फॉर्म में उधर डिवाइड में चला जाएगा, बराबर है क्या? तो क्या मिलेगा x2 is equal to delta p upon P10, डेल्टा p क्या रहता है, डेल्टा p upon P10 रेशियो क्या रहता है, रेशियो दैट रेशियो कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अरे पढ़ लगा नहीं? हाँ, फिर बाद में फिर से हमें थोड़ा बता रहे हैं, हमें क्यों बता रहे हैं भाई, रॉल्सटॉन के हिसाब से अभी बोला गया दिस शोज दैट दिस एक्सप्रेशन शो दैट या ध्यान दो, so this expression show that vapor pressure lowering depends on mole fraction, यानी कि depends on number of moles of fluid particles, कितना है उसके ऊपर है। तो my point is that here boys ध्यान दो, यहाँ पे क्या है देखो इधर, ये यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं, तो ये भी क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, P10 कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं, क्या बदलेगा, which are the changeable factor, variable factor, x2 and delta p. So we can say vapor pressure lowering depends on mole fraction, number of moles of fluid. हमने यहाँ पे number of moles of fluid को एक्सप्रेस किया in terms of mole fraction, ठीक है। फिर बाद में हम थोड़ा सा और उसको एक्सप्रेशन दे रहे हैं, यहाँ पे कैसे बोल रहे हैं यहाँ पे, that what this shows that the vapor pressure lowering depends on number of fluid particles, that is x2, और x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन है किसका, सोलूट का, कौन सा सोलूट, नॉन वाटर सोलूट। फिर बाद में यहाँ पे बोला मैंने दैट इज व्हाट, डेल्टा p, दैट इज डेल्टा p स्टैंड फॉर व्हाट, वेपर प्रेशर लोअरिंग, वेपर प्रेशर लोअरिंग इज नथिंग बट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एज यू नो दैट, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ये फॉलो होता है। और कोई डाउट और कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे, सीरीज शॉर्ट निकालेंगे या कॉपी करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, चलो तुम्हारी मर्जी से, कर दिया सर, कर लिया। फिर आगे चले, हैप्पी एंड, हमारा EM नहीं भाई, हमको यहाँ पे इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से हमें सिर्फ मॉलिक्यूलर, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द मोनोमर मास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो हमको फाइंड आउट करने का, so therefore this one how will you find it? So let us say that last questions on this topic, that is the IC vapor pressure loading का, the question may be asked you, derive the relationship between molar mass of a solute and molar mass of a solute from relative loading of vapor pressure. The question may be asked you, how will you explain the relationship between the molar mass of solute and relative loading of vapor pressure? ठीक है, तो देखते हैं अभी फिर क्या है यहाँ पे, ठीक है, अंडर द हेडिंग मोलार मास फ्रॉम द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कैसा मिलेगा वही स्ट्रक्चर ध्यान रखो, इसको याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन नंबर हम इसमें क्या करेंगे भाई, तो क्या करेंगे इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे भाई, ऐसा इसको याद रखो, ठीक है। अब इसको रब करो, चले आगे चले, we are because we are only interested for the molar mass, molecular weight of a solute here from the vapor pressure, okay। तो देखते हैं पापा कैसा होता है, क्यों होता है, किधर होता है। under the heading what such a solution, that solution contain one volatile solvent and one non volatile solute, तो उस सॉल्यूशन के लिए हम किस तरह से लागू फॉलो करते हैं देखते हैं। देखो बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और हर एक काम देखो आप, और उसको प्रैक्टिस करना, हर एक स्टेप का प्रैक्टिस करो, रट्टा नहीं मारने का, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सप्रेशंस बोलिए, जिसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, और ये आता है बोर्ड के एग्जाम में, ये नहीं है तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल डिपेंड सेट 2 मार्क का, तो लाइटली बहुत लो, और बहुत इजी है, बहुत इजी है, लाइटली लेते हो, फिर हेवी ले लो, हेवी ले लो, हार्ड में लेते हैं सर, हार्ड में ले लो, हार्ड में ले लो, एंड टेक द रेफरेंस बुक ऑफ एनसीईआरटी का बुक भी रेफर करो भाई, हां अपना स्टेट बोर्ड में फॉलो करो, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक नहीं है,
लेकिन तो भी टैली करो और डायरेक्ट नोट्स में अटैक मत करो। नोट्स में अटैक करोगे तुम तो मिस्टेक मिलेगा बहुत सारा। तो फॉलो करने के लिए आपको टेक्स्ट बुक फॉलो करना पड़ेगा, एनसीईआरटी का, राइट? मत लो। let us see last part over here. Molar mass. Why don't get confusion? Molar mass also called molecular weight, also called molecular mass. Having same meaning here. मराठी मध्ये रेणुभार. रेणुभार कोणा मुलीचं नाव नाही बरं का रे. It's one kind of concept, famous concept in case of chemistry here regarding compound. Understood? Regarding molecule. और हम कैसे पता है आपको किस तरह से निकालते हैं उसको? मॉलिक्यूलर वेट को जब हम स्कूल लेवल से पढ़ते हैं क्या बनता है क्या? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूलर वेट. और कळलं का नाही? अरे आठवतं का? ये भाई सोने का नहीं आया, ध्यान दे. चलो देखते हैं. So molar mass, wise, I say molar mass of a solute, उसको हम साइन से पता है क्या साइन? कैपिटल M1 दिखता है इधर का? Yes. From what? From vapor pressure lowering. Vapor pressure lowering. ठीक है? यानी कि डेल्टा P से हम डेल्टा P के हेल्प से किस तरह से निकालेंगे मोलर मास को, देखते हैं उसका. ठीक है, देखते गाइस. तो स्टार्ट करते हैं. बहुत इजी पॉइंट है, बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी. व्हाट इज दैट? लेट अस हियर. बहुत इजी. हां, बहुत इजी. देखो, as we know that, what do we do that? It's a kind of mathematical language. As we know that relative lowering of vapor pressure, guys, relative lowering of vapor pressure divided by vapor pressure of your solvent is equal to mole fraction. अभी देखा था हमने क्या? x2 is equal to delta P upon P10. अरे आठ होता नहीं? आठ होता है. हाँ, उसको पकड़ के आगे चलेंगे. देखो क्या बोला मैंने? As we know that relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure is equal to, what is that? Is equal to mole fraction. I say mole fraction of a solute, और वो हम बताते हैं साइन से x2. ठीक है? इन द सॉल्यूशंस, कहां पे? इन द सॉल्यूशन. दैट इज व्हाट? दैट इज x2 is equal to delta P upon P10. तेव्हा कळलं का रे काय समथिंग आहे ना? तर ऐकू दे का? क्या बोला पे? x2 is equal to delta P upon P10. इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1. Yes. Now point number 2. What is that here? Let us hear. Point number 2 here. Mole fraction of a solute from the solution is given by what? I see mole fraction of a solute, I see x2 is given by mole fraction of x2, mole fraction of solute in the solution, sorry, in the solution is given by, वो हम इस तरह से लेते हैं भाई, ध्यान देना कैसा? x2 is equal to, I say n2 upon n1 plus n2. तेव्हा कळलं का काय समथिंग ना? इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन क्या आंसर है बॉयज? सबको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे क्या लिखा है, मैं क्या बोल रहा हूं? सबको सुनाई दे रहा है? हाँ सर. यस, वेरी नाइस. Where in this expression, where n1 stand for, I repeat here boys, stand for, I say letter n1, small n1 stand for number of moles of solvent.
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर n1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है तो n2 क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। वेरी नाइस, एक्सीलेंट वर्ड्स, वेरी गुड, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है? 2/3। वेरी गुड, वेरी तो गुड, चाहिए ठीक है? रिस्पेक्टिवली इन द सॉल्यूशन इन RSP। सर n2 चाहिए। आई क्या हुआ? n2 is equals to ना हाँ n2 sorry n2 yes n2 is equal to number of moles of solute RSP in a solution in RSP means not road service police respectively very nice excellent चलो आगे भाई चलो उसके बाद उसके बाद फिर ध्यान दो पॉइंट नंबर 4 क्या हुआ आराम से बोलो सुनाई दे रहा फिर से बोलो सर n किसके लिए स्टैंड है? कौन सा n1 या n2? नहीं सर वो n1 सर n है ना सिर्फ n1 stand for small n1 stand for number of moles of solvent yes not it n2 n2 stand for number of moles of दो नंबर solute ठीक है boys and girls now here we are conserving boys and girls here we are concerned only with solution क्या containing non-volatile solution ठीक है yeah hence why is that hence n1 is greater than n2 मतलब हम ऐसा डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हैं यहाँ पे why is only with the dilute solution एक बार ध्यान दो इधर dilute solution containing non-volatile solute and hence n1 is greater than n2 बराबर है क्या boys so we can write here what I say n1 plus n2 approximately equal to n1 ठीक है boys ध्यान देना so we can take over here उसको हम सेपरेट भी ले सकते हैं n1 क्या रहता है boys n1 रहता है मैं आपको बोलता हूं इजीली क्या रहता है इसका बाद में लेते हैं देखो ये बता दो इधर आपने बोला है n1 क्या रहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट उसको हम इस तरह से निकालते हैं weight of solvent divided by molecular weight of solvent and n2 को हम इस तरह से निकालते हैं n2 को हम इस तरह से निकालते हैं ऐसे W2 upon m2 ठीक है अभी हर एक का मीनिंग देखेंगे डोंट गेट कंफ्यूज जल्दबाजी मत कर दे बेटा क्या बोला सो व्हाट आई राइट हियर पॉइंट नंबर 3 here we are concerned only with dilute solution and hence what hence बच्चों n1 is greater than n2 so we can write over here I say n1 plus n2 is approximately equal to n1 मतलब हम इतना कंपेयर करें कि वहां पे n1 का वैल्यू बहुत ज्यादा है सॉल्वेंट का प्रमाण ज्यादा है और सॉल्वेंट का बहुत ही कम है so we can take n1 plus n2 approximately n1 here so therefore this one इक्वेशन नंबर ये वाला इसमें से क्या करोगे इसमें से इसको सब्स्टिट्यूट करो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा भाई x2 is equal to n2 upon
n1 चालेल का रे? अरे चालेल का? हो सर. यस ओके ओके नाउ वॉइस अभी हमको यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको पता है ठीक है, यहाँ तक आए इक्वेशन नंबर 3 देंगे इसको. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n2 एंड n1 इन इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमारे पास ये अवेलेबल है. ठीक है, देखिए वो जानने से पहले वॉइस ध्यान दीजिए, वो जानने से पहले हम यहाँ पे उसको इस तरह से कंसीडर करेंगे. पॉइंट नंबर 4 हैप्पी एंडिंग लेट व्हाट लेट w1 सॉरी w2 ग्राम ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास, सोल्यूट का मोलर मास है वॉइस ध्यान दीजिए, अपॉन मोलर मास m2 be dissolve in what? Dissolve in capital W1 gram of W1. solvent. सॉल्वेंट का मोलर मास अपॉन मोलर मास. वेट इन खत्म हो गया. सॉरी फॉर द ब्रेक. ओके सर. सर वो W and W2 stands for. बोलता वेट Okay. सर W की प्लेस स्टैंड है. वेट सर M2 की प्लेस स्टैंड है. बोलता वेट देखो इधर क्या बोला यहाँ पे मैंने लेट सपोज सर कंसीडर N W2 सर N बोलो ना सर एक बार. बोलो N1 की प्लेस स्टैंड है. n1 small n1 stand for number of moles of solvent. This is a different type of cell. हाँ और बोले इतना क्या लगा? अंडरस्टूड दिस मच. क्या था समझ आ गया? देखो वॉइस क्या बोला थे? लेट W2 gram of solute upon molar mass m2 be dissolved in a W1 gram of solvent upon molar mass m1. तो कळलं इथपर्यंत? हां तो सबस्टिट्यूट व्हॅल्यू दिस वन व्हाट आय से नॉर्मल ब्लड नॉर्मल म्हणून विचारलं. तो मोलार मास ओके रुकता डोंट गेट कन्फ्यूजन. मोलार मास मामा बाबा बराबर है क्या? क्लियर है सर. ओके चले फिर बहुत इसे देखो मेरा क्लियर है. ओके ना वॉइस फिर हम यहाँ पे रख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू क्लियर है. x2 इज इक्वल टू ये बता देते x2 इज इक्वल टू ऐसे w2 अपॉन m2 डिवाइडेड बाय what w1 अपॉन m1. ये बरोबर आहे का बाबा? इथपर्यंत काय अडचण नाही करायची. we have x2 is equal to मैंने क्या किया यहाँ पे वॉइस यहाँ पे n2 अपॉन n1 था, हमारे पास n2 है. क्या है हमारे पास? n2 w2 अपॉन m2 है और n1 क्या है हमारे पास? w1 अपॉन m1 है. तो भाई मैंने क्या किया यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, मुझे यहाँ पे मिला x2 इसमें से इक्वेशन नंबर 3 से you can mention over here substitute the value of n2 and n1 in equation number 3. So what we get the x2 is equal to y is आधी तर ते वगैरे वो इकडे ध्यान देता x2 is equal to what? x2 is equal to capital W2 upon m2 whole divided by capital W1 upon m1. तो मैं क्या वॉइस अरे कळलं का नाही? W1 और हाँ ठीक है ना. कंपेयर इसको हम इक्वेशन क्या करेंगे बॉयज? ध्यान दीजिए इधर थोड़ा इसको हम इक्वेशन नंबर 3 हो गया, इसका 4 देंगे ना. कंपेयर इक्वेशन इसका टाइम पर करो. इक्वेशन 4 सर क्या हुआ? शांत W1 M1 स्टैंड फॉर बता दे. ऐसा भी करो मॉडिफाइड. देखो इधर क्या हुआ? सर ये इसका टाइम पर कर. बोलो अरे सर W1 और W2 M1 और M2 किसके लिए स्टैंड है ये बता दो. W1 स्टैंड फॉर लिख के दो सर. अरे सब सुनो ये जब पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा ना तो मैं पूरा लिख के देता ना. डोंट टेक टेंशन यार, वॉइस ध्यान दीजिए यार. सर डिफाइन करो पूरा. तो भी बोलता मैं डोंट टेक टेंशन मत करने सर. आप लिख के दो ना सर. अरे बोलते ना बाबा रुको ना यार. W1 stand for I repeat इधर ओए
W1 stand for W1 gram stand for weight of solvent, and W2 stand for weight of solute, and M1 stand for, I repeat boys and girls, M1 stand for molar mass of solvent. अभी आप लोग मुझे बोलो। लिखा तो ना। हाँ बोलता मैं सब अभी बोल। लिख के दो। हाँ सब लिख के, अरे बाबा सब लिख के देता है, लास्ट में वही आएगा ना, रुको ना आएगा ना। अभी मुझे बोलो तुम लोग इक्वेशन नंबर ये फोर्थ वाला और इक्वेशन फर्स्ट। ब्लर है पूरा ब्लर है। वेट IHI M1 stand for W1 stand for सब लिख के देता, सब लिख। किसी ने जीना से समझ सही नहीं क्या समझ रहा है आपको। हैप्पी एंडिंग वही है, रुको पूरा बैड हो रहा। चलो मामा क्लियर मामा। ब्लर है वो। सर झाला क्लियर। चला ओके बघा क्लियर आता क्लियर आहे। मग आता मला सांगा इक्वेशन 4 मध्ये आणि इक्वेशन फर्स्ट मध्ये काय फरक आहे? काय फरक आहे? कोणत्या बाजू सारख्या बघा बरं. डासी दे W2 आणि M2 आहे. M2 आणि M1 आहे. अरे कंजूस हो. ब्लर बताओ ना। सब लिख के देता ना बाबा, रुको ना जल्दबाजी मत करो ना भाई. ब्लर आहे का रे? राहुल झालं तर क्लियर झालं. आता ऐकून घ्या इक्वेशन 4 मध्ये ऐका रे बाबा. इक्वेशन 4 मध्ये x मला ऑडिओ ऐका मला. इक्वेशन 4 मध्ये x2 is equal to w2 upon m2 whole divided by w1 upon m1 इक्वेशन 4 मध्ये. आणि इक्वेशन 1 मध्ये काय आहे? x2 is equal to delta p upon p10. मग या दोन्ही इक्वेशन मध्ये इक्वेशन 4 मध्ये आणि इक्वेशन 1 मध्ये जर त्याची LHS साइड सारखी असेल तर RHS पण सारखी असणार का नाही? बरोबर वो सब तो क्या मिलेगा मेरे यहाँ पे? डेल्टा p अपॉन p10 इज इक्वल टू w2 अपॉन m2 होल डिवाइडेड बाय w1 अपॉन m1. हम जब उसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा डेल्टा p अपॉन डेल्टा p10 इज इक्वल टू w2 इनटू m1 डिवाइडेड बाय m2 W1 into W1. वेरी नाइस. अभी यह हमारा फाइनल इक्वेशन है भाई. और कोई दिक्कत, कोई अड़चन, कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी? अभी मजा आएगा, नंबर 5 अभी बहुत मजा आएगा. ना टेल मी वन बाय वन. चलो वन बाय वन. सर मजा आ रही है. हाँ. मजा आ रही सर, लेकिन लिख के दो ना. W2 stand for W1. हाँ ना लिख के देता ना. रुको ना, रुको हो गया ना, रुको ना. अब बोला इसके नीचे लिखना पड़ेगा. इसके नीचे क्या? where delta p is equal to भाई हो गया फिर. ये होने वाला टर्म के बारे में बताना है आपको, बताया ना कल परसों. एक बार फिर से where इसके नीचे लिखने का, इस इक्वेशन के नीचे डेल्टा p, where delta p is equal to मीनिंग क्या उसका? वेबर प्रेशर लोअरिंग. हाँ हो गया. नेक्स्ट आगे आई सॉरी बोलो. क्या करें ज्यादा भाई. हो गया म्हणते सर. वेर आगे उसके नीचे P10 is equal to वेपर प्रेशर प्योर सॉल्यूट. वेपर प्रेशर सॉल्वेंट. हाँ सॉल्वेंट. वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्वेंट P10 वन नंबर है भाई. P10 है. नेक्स्ट वन नंबर ऑफ आटोम्स. हाँ उसके बाद W2 कम ऑन. W2 is equal to सॉल्यूट W2. वेरी नाइस. वेट ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ ग्राम और किलोग्राम. हो गया. आगे W1 गेट में बेस्ट आ जाए. देता ना. तुम इसको तो समझा लो ना. सब PDF फाइल में नोट्स में सब लिखा है ना. अगर मैं सब लिख के दूंगा तो आपको कवर कैसा होगा सिलेबस यार? एक साइड को ब्रैकेट में लिख के दो ना W2 M2. हाँ सब उसके नीचे लिख के देता मैं. यहाँ तक मुझे बोला सब समझ में आया क्या? हाँ सर यहाँ तक समझा. मैं अभी ओरली बता रहा हूँ, ध्यान देने बेटा. वो लिख के भी देता. डोंट टेक टेंशन होता यार. टेंशन मत लो, इधर ध्यान दो. आई रिपीट बोले डेल्टा p वेयर डेल्टा p इज इक्वल टू वेपर प्रेशर लोअरिंग. उसके नीचे P10 is equal to vapor pressure of your solvent and W2 is equal to weight or mass of solute in gram or kilogram.
and W1 stand for weight or mass of solvent in gram or kilogram, and capital M1 stand for molar mass of solute. hey M1 बोला मैं डायरेक्टली मत पकड़ना मत फॉरवर्ड के लिए हाँ क्या आएगा फिर M1 molar mass of solvent. वेरी नाइस and M2 क्या आएगा फिर molar mass of solute. वेरी नाइस और वही हमको अभी करना है क्या नहीं मारे जैसे कि भाई एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ M2 अच्छा इधर का रद्द करो क्या इधर का रद्द करो क्या कॉपी कर रहे फोटो नहीं कर रहे क्या कर रहे कॉपी कर रहे क्या लिख रहे क्या रहे क्या कर रहे कॉपी ओके ओके हो गया वो स्क्रीनशॉट निकालिए. स्क्रीनशॉट निकालने चले सबसे बेस्ट आइडिया है ना शॉर्टकट ले लिया शॉर्टकट. रब करो अभी हो गया बॉयज झालं का नाही रुको हो झालं सर. मी कागद पाठवतो सर. एकमेकाला पाठवा वाटलं सर स्क्रीनशॉट मम्मा हे काय आलं बघा बरं हे काय आलं बघा बरं आयटी मध्ये सगळे झालं बघा झालं सर. ओके ओके ऐकून घ्या परत लिहून देतो रे गडबड नका करू इकडे बघा मला सांगा ते एक्सप्रेशन जे सगळ्या शेवटचे एक्सप्रेशन्स आहेत डेल्टा p अपॉन p1 0 इज इक्वल टू w2 इनटू m1 अपॉन w1 इनटू m2 into w1. अब तो क्या नहीं वाले दिस इक्वेशन टर्म्स ऑफ m2 उसको हम m2 फॉर्म को फॉर्म में लिख सकेंगे क्या आएगा m2 इज इक्वल टू लिख सकते इसको उठाओ इसको उठाओ आराम से उठाओ और इस इक्वेशन की इधर लेके आओ और उसको उधर फेंक दो क्या मिलेगा ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा क्या होगा डाला दिखाना सर m2 is equals to w2 into m1 into w2 into delta m1 into p10 divided by delta p upon w1. very nice delta p into w. w1 very good बेटा very good full mark very nice ना भी इसके नीचे हम लिख सकते हैं so we are interested to find out the molar mass of solute here और ये रिलेशनशिप है ठीक है उसके ऊपर न्यूमेरिकल बाद में हम न्यूमेरिकल बाद में डिस्कस करेंगे सॉल्व करेंगे मैं आपको होमवर्क देता बाद में डाल इधर ओए अभी यहां पे लिखेंगे बेटा चलो वन बाय वन where m2 is equal to Molar mass of solute. yes very nice full mark very good बेटा molar mass of solute और molecular weight of sodium mass of solute very nice ठीक है उसके बाद W2 w2 solute weight of solute. yes weight of solute very nice weight of solute in terms of gram or kilogram now W1 weight of solvent. वेरी गुड देखो तो आप लोग बता रहे आप लोग बता रहे बेटा कितना इजी है बोलो कितना गरीब पार्ट है देखो कैपिटल M1 Molar mass of solute. Molar mass of solvent. वेरी नाइस वेरी गुड एक्सीलेंट वेरी गुड बेटा यस नाउ डेल्टा p डालो दिखाना वो lowering pressure. Vapor pressure of lower. वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ वेपर कैसा भी ले लो चलते रहे. वेपर प्रेशर लोअरिंग और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसा भी ले लो भाई चलो P10 हां Vapor pressure. Molar mass of ओए P10 बोला मैं vapor pressure of your solvent. वेरी नाइस वेरी गुड वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्वेंट ओके बाय नोइंग by knowing other quantities m2 can be calculated m2 that is what क्या molar mass of solute can be calculated determined I evaluated understood इसके ऊपर न्यूमेरिकल भाई लाइटली मत लो
वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी, कोई क्यूरी, एनी इंक्वायरी? बोलो बेटा। ऐसा सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट से लाइटली मत, उसका भी प्रैक्टिस करो, आपके बहुत सरल समय है, तो यूज द सेकंड प्रॉपर्ली। ठीक है, हर एक टर्म, हर एक सिंबल, हर एक हाँ हाँ। तो ये हो गया वेपरिंग प्रेशर, ऐसे वेपर प्रेशर लोअरिंग, पहला प्रेशर, वेपर प्रेशर लोअरिंग, पहला कोलिनियर प्रॉपर्टी। अब द सॉल्यूशन, बहुत अच्छा पार्ट चालू करे तो। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? बहुत अच्छा पार्ट चालू था, लेकिन प्रैक्टिस करो उसका, लाइटली मत लो। ये केमिस्ट्री वाले में ना वोलेटाइल सब्सटेंस में आता है, वोलेटाइल केमिस्ट्री में, वोलेटाइल सब्जेक्ट में आता है, इसलिए तभी का तभी करके रखने का। आउटलोड लेने दे सर। चलो अब आगे चले, और एक हम नया कंसेप्ट शुरू करते हैं, उसका नाम है एक सिर्फ टाइम हो, खाली डेफिनेशन एक दिन। कितना मिनट बाकी है ना? थोड़ा सा लेते ना, 5 मिनट, 2 मिनट खाली डेफिनेशन बेटा, बहुत गरीब डेफिनेशन से। हाँ, क्या करना है? वो सर बचपन वाली है ना सर, बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, नेक्स्ट कोलिनियर प्रॉपर्टी है। लेट अस सी दैट वन है, बहुत सिंपल से इजी पार्ट है, बहुत इजी, बहुत इजी। तो अभी इसको रब करो, हो गया सबका लिख के। अभी सबको समझ में आएगा हर एक का मीनिंग? वेरी नाइस, चलो आ गया। ओके, अभी इसको रब करो बेटा, पूरा रब करो, पूरा रब करो। बचपन की डेफिनेशन, बचपन की डेफिनेशन, यस बचपन की डेफिनेशन। यस यस, बताओ बताओ, चलो कोई कोड बोले करे। व्हाट इज मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट? आप लिखिए। Temperature at which the vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric. वो अभी का डेफिनेशन भाई, बचपन का बताओ। शादी की मेरे बचपन की water boils वाटर बॉइल and converted into water vapors. हाँ, वेरी नाइस, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। चलो अभी इसको रब करो। अभी सबको समझ में आया क्या? किसका मीनिंग क्या है, किसका मीनिंग क्या है, किससे? हाँ, चला आगे बार। हाँ चलो, बहुत सिंपल सा पार्ट से बहुत इजी बेटा, बहुत इजी है, बहुत गरीब पार्ट। नेक्स्ट कोलिनियर प्रॉपर्टी is called boiling point elevations. What is that? Let us hear. The question may be asked you, state and explain or define. What define? Define boiling point of liquid. Explain boiling point elevations. So let us see that part over here. Our second कोलिनियर प्रॉपर्टी called boiling point elevations. So start the point here. Boiling point. Boils. Boiling point of liquid. देखो इसका बहुत गरीब सा डेफिनेशन से बहुत इजी है। क्या है देखो जरा, इट्स डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रिकॉर्ड लगा? इट्स डिफाइंड एज द टेम्परेचर at which vapor pressure of a liquid becomes equal to, boys, becomes equal to atmospheric pressure. ये वो गड़ा कर रहे हैं, ऐसा दिखा ना? अरे क्या लगा नहीं? नंतर boiling point elevations। अभी ये क्या भान करे भाई? ये क्या नया ड्रामा है? हाँ? देखो इसका सिंबल क्या है? आइकन क्या रहेगा? सिंबल है डेल्टा टीबी। हम डेल्टा टीबी से बताते हैं किसको? मेरे को नहीं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अब इसका डेफिनेशन देखो, बहुत इजी। देखो इधर वाइस हियर, इट्स डिफाइंड एज द it is defined as increasing the boiling point of a pure solvent when a non-volatile solute is dissolved in it. Yes, understood? अभी आपको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, नोट डाउन किया हमने। फिर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आए, उसमें थोड़ा सा सोल्यूट ऐड किया, फिर से बॉइलिंग पॉइंट लिया, तो क्या मिला? बॉइलिंग पॉइंट बड़ा हुआ या कम हुआ? कम हुआ। 0 mark. It is defined as the increasing, boys and girls, increasing, what increase? Increasing boiling point of a pure solvent when non-volatile, boys and girls,
नॉन volatile solid बोलता नॉन volatile मतलब जल्दी से evaporate ना होने वाला, जैसे सॉल्ट, शुगर। अल्कोहल का नहीं, volatile solid का हाँ मीनिंग सर। मीनिंग मतलब जल्दी से भाप बनने वाला। नॉन वोलेटाइल का मीनिंग होता है जल्दी से भाप नहीं बनना, उसका भाप मतलब वेपर फॉर्म में नहीं आता हो। वॉइस अच्छा, नॉन वेपराइज। हाँ, नॉन वेपराइज, ठीक है। और वोलेटाइल मतलब जल्दी से वेपर में आने वाला, वेपर में कन्वर्ट होने वाला। हाँ, तो करो भाई, क्या बात समझ लगा? इजी पार्ट है। हाँ, देखो क्या बोला आपने, इज डिफाइंड एज द इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट इज डिसॉल्व इन इट। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड या पॉइंट नंबर हम सेकंड पढ़ेंगे इसको। देखो बहुत इजी है। इफ अगर मैंने यहां पे कंसीडर किया क्या, इधर ले देखो पॉइंट नंबर सेकंड क्या किया, इफ TB0 is equal to boiling point of pure solvent and TB is equal to क्या, what is that? Pure solute. boiling point of solution. Pure solute. ए बाबा नील बगा रही then हाँ क्या रहता है पता है ना, क्या रहता है, TB is greater than TB0। हे बघ कळलं काय चालतं ना, हे सगळं समजतं काय चालतं ना। So we can write over here point number थर्ड, इसको हम point number फर्स्ट देंगे, don't get confused हो गया। Time of इसका point number हाँ हो गया भाई हो गया। Point number third you can mention over here. What point number third? The difference. What difference? The difference between, what is that? The difference between boiling point of solution and that of boiling point of pure solvent at any given pressure, at any given constant pressure is called boiling point elevation। record लगा and is given by, what is that, delta TB is equal to, हो गया। चलो ये बेटा उसके एक्सप्रेशन से, इसको याद रखो, आपको इसको फिर से रिपीट करने का। सर कल शॉर्ट में लेना। हाँ देखो सिंपल सा डेफिनेशन, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। फिर से ना सर। यस